Everyone is here. बच्चों कुछ तो रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा बेटा. Okay, great. People are giving me thumbs up. Are you guys not able to speak or something? You can't unmute yourself. Is there? Okay. Mics are disabled for us. Oh, that is sad. How are you going to ask your doubts? आनंद सर, इज इट पॉसिबल कि हम ये लोग म्यूट कर सके, अपने आप को अनम्यूट कर सके? ओके, ठीक है. ओके, अच्छा तो आई एम नॉट गोइंग टू लाइक दिस टाइप ऑफ टीचिंग वेयर आई वोंट बी एबल टू कितना समझ आ रहा है, बट ओके, आई थिंक वी विल स्टार्ट बिकॉज़ इट्स ऑलरेडी बीन टू लेट. Okay, so everyone is clear with all the concepts we had done yesterday. You guys can give me thumbs up because I think वही काम चलेगा, ये भी करेगा. Okay, great. Any difficulty, any query? कल के कुछ भी concepts में किसी भी चीज में कोई भी query, more than welcome. आप प्लीज टाइप कर सकते हो because I think that is how we can work sadly. Yes, Abhinash, you want to say something? Of course, you can't say. You'll have to. Um, but say you didn't attend the class yesterday. That is your fault. I can't give a complete summary. But what I can say is that we'll be revising in the last one or two classes, most probably two classes, because we have only three units. And today we'll be done with the first unit and we'll be starting the second unit, most probably. आज time हमारा काफी waste हो गया technical issue के चक्कर में. But yes, there will be revision. Uh, and in the end, maybe हम समझा पाएंगे. Okay. Okay, is everyone able to see my screen? Is it visible? Because कल बच्चों ने बोला था कि structure आपको you want to know. Okay, great. So अभी तक हमने interview of theory and research कर लिया है. I hope it is clear. If it's not, don't worry. We'll be revising everything. All right, and we'll be starting with the linkage with other disciplines. All right. अभी भी still it is available now, the structure? Okay, great. ठीक है. Okay, so now of course, as we see, social psychology, you know, जैसे जैसे हम पढ़ाई करते हैं, we try to understand that the subjects they don't generally are in isolation, right? हम कुछ भी जो भी हम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी सब्जेक्ट जो है वो आइसोलेशन में रहता है. एवरी सब्जेक्ट can be linked to another subject, right? It's very
normal की psychology में you are going to see a bit of sociology, you are going to see a bit of philosophy. We also study research, statistics हम पढ़ते हैं psychology में. Then we also uh, learn biology, neuroscience. We learn a lot, right? So in general, also any other subject you are reading about, for example, especially when it comes to humanities and social sciences like economics or sociology or other topics, political science, history, these subjects, they don't exist in isolation. They have linked with other subjects as well. So the same thing can be said in terms of social psychology as well, right? So social psychology has linkage within psychology also. We are going to talk about within psychology. So social psychology and personality psychology, it has a lot of link because personality psychologists, see, they are more concerned with variations in people's psychological makeup. I hope you have, uh, I think you guys have covered personality psychology. You know about personality की personality कितने तरीके की होती है, हम personality में कैसे divide करते हैं personalities को अलग अलग parts में. So psycho पर्सनालिटी साइकोलॉजिस्ट दे आर मोर कंसर्न विद द पीपल साइकोलॉजिकल मेकअप कि हम कैसे लोगों को अलग अलग चीजों में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक टाइप ए, टाइप बी पर्सनालिटी. हम किसी को एक्सट्रोवर्ट बोल देते हैं, हम किसी को इंट्रोवर्ट बोल देते हैं, ऐसे करके हम डिवाइड करते हैं पर्सनालिटीज को. सोशल साइकोलॉजिस्ट आर मोर कंसर्न विद हाउ सोशल सिचुएशंस अफेक्ट हाउ पीपल रिएक्ट. अब इनमें देयर इज ऑफ कोर्स सम एस्पेक्ट्स जहाँ पे हम ये लोग मेल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, people who pay a lot of attention to the impression they are creating, वो लोग अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे. अगर कोई ऐसा इंसान है, there are going to be differences in the way an extrovert and an introvert behave in a social situation. अगर आप एक इंट्रोवर्ट को एक बड़ी सी पार्टी में ला के रख दोगे और एक एक एक्सट्रोवर्ट को एक बड़ी सी पार्टी में ला के रख दोगे, of course the way they are going to behave socially, they are going to interact with different people, the conversations they are going to have, it is going to be very different, right? और हम इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट की बात करें, हम डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स की भी बात कर सकते हैं. तो यहाँ पे पर्सनालिटी साइकोलॉजी काम करती है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज जो है दे बिहेव इन डिफरेंट वेज. दूसरा आपका हेल्थ साइकोलॉजी के साथ कैसे सोशल साइकोलॉजी लिंक करती है. दोनों का इंटरेस्ट जो है वो कहीं ना ओवरलैप करता है, हेल्थ साइकोलॉजिस्ट का और सोशल साइकोलॉजिस्ट का, as both are interested in how we might change people's health related behavior. Social psychologists are also extremely interested कि हम कैसे overall health behavior को change कर सकते हैं लोगों को, right? For instance, अगर social psychologists जो है they often work with health psychologists to identify triggers for smoking and excessive consumption of alcohol. There is a lot of research that says कि हम peer pressure में आके people start consuming alcohol, people start consuming other types of drugs. So ये क्या है, ये social influence ही है. तो यहाँ पे social psychology और health psychology they are meeting each other. Then we talk about industrial और organizational psychology. जो अब इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी क्या है, ऑफ कोर्स अब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, आप लोग डीयू से बिलोंग करते हैं, आप आगे जाके किसी ऑफिस में काम करेंगे, किसी इंस्टीट्यूशन में काम करेंगे. व्हाट इज एन इंस्टीट्यूशन? इट्स अ बिग अमाउंट, लॉट ऑफ पीपल कम टुगेदर एंड मेक एन इंस्टीट्यूशन, राइट? तो ऑफ कोर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंडस्ट्री में देयर आर अ लॉट ऑफ सोशल साइकोलॉजी दैट इज गोइंग टू बी एट प्ले, राइट? इतने सारे ग्रुप्स बनते हैं, मैनेजरियल पोजीशंस में आते हैं लोग, लीडरशिप पे काम होता है, कैसे हम प्रोडक्टिविटी ग्रुप में इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे हम लोगों की एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं, लोगों का एक दूसरे के प्रति कैसे रिलेशनशिप्स है वो हम कैसे एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं लोगों के, लोगों को कैसे हम हेल्पिंग बिहेवियर लोगों का कैसे इंक्रीज कर सकते हैं. ये सारे क्वेश्चंस हैं जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट हर रोज हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर या एचआर के जो लोग होते हैं उनका यही इशू होता है कि ग्रुप में लोग कैसे एक दूसरे के साथ अच्छा बिहेव करेंगे, उनका टीम वर्क अच्छा हो, दे आर गोइंग टू कोलैबोरेट विद ईच अदर. So that is where social psychology and industrial or organizational psychology they overlap. Okay, so there's a small point that is completed. Ma'am, when I can get study materials second semester,
But this you will have to ask from the office. This I have no idea about, and I won't be able to help you in this. अच्छा, अभी ये जो तीन हमने पढ़े, लिंकेज ऑफ सोशल साइकोलॉजी विद इन साइकोलॉजी, जिसमें हमने हेल्थ साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा, पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में पढ़ा, वॉज इट क्लियर, ताकि मैं और आगे बढ़ूं? मैम, so social psychology is less individualistic. Yes, correct. See, social psychology talks about how the presence of others affect एक इंडिविजुअल का बिहेवियर, थॉट्स और एक्सपीरियंसेस. लेस इंडिविजुअलिस्टिक बोलना इज डिबेटेबल, बट यस, सोशल साइकोलॉजी डज कंसिडर व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड एन इंडिविजुअल. सोशल साइकोलॉजी जरूर बिलीव करती है कि हमारे बाहर क्या हो रहा है, एक्सटर्नल वेरिएबल्स क्या है, वो भी मैटर करते हैं. सोसाइटी मैटर करती है. सोशल साइको हम अकेले कैसे बिहेव करेंगे और हम 10 लोगों के सामने कैसे बिहेव करेंगे, उसमें डिफरेंस है. वहां सोशल साइकोलॉजी का रोल आता है. करेक्ट. और 10 लोग भी अलग अलग हो सकते हैं ना. अगर वो 10 लोग फैमिली है तो हमारा बिहेवियर अलग होगा. अगर वो 10 लोग आप किसी शादी में है तो आपका बिहेवियर अलग होगा. अगर वो 10 लोग आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आपके स्कूल फ्रेंड्स हैं, आपका बिहेवियर अलग होगा. तो दैट इज वेयर सोशल साइकोलॉजी प्लेज द रोल. सबको समझ आया? इज देयर एनीथिंग यू गाइस वांट मी टू रिपीट और शुड वी मूव ऑन? थोड़ा सा जल्दी जल्दी प्लीज रिस्पॉन्ड करो बच्चा, ताकि वी कैन मूव ऑन फास्टर. ओके, आई वुड एक्सपेक्ट कि एवरीवन शुड रिस्पॉन्ड. सिर्फ 4-5 बच्चे नहीं प्लीज, बहुत सारे बच्चे हैं, तो थोड़ा सा एक्टिव हो, ताकि मुझे लगे कि आई एम टीचिंग पीपल एंड नॉट जस्ट रिकॉर्डिंग अ वीडियो. ओके, ग्रेट. ओके, तो अब हम अभी तक तो हमने बात किया कि व्हाट इज द लिंक ऑफ सोशल साइकोलॉजी विद इन psychological disciplines, right? But there is, of course, now we're going to talk about linkage of social psychology with other disciplines. Now, when we talk about other disciplines, we are talking about disciplines outside psychology. We're not talking about subfields of psychology. So there are a lot of subjects जिसके साथ social psychology can be linked. First one is biology. Now, how? Biologists are interested in many of the same issues as social psychologists, but उनका focus कहाँ होता है? उनका focus is more on genetic, neurological, and how our body is behaving, ठीक है, in different level of analysis. Now the connection when we talk about between social psychology and biology, it has been increased क्योंकि अब लोगों को ना evolutionary psychology में interest आने लगे हैं. Evolutionary psychology क्या है? An approach that seeks to combine insights from evolution. हम क्या कर रहे हैं? Evolutionary biology से और social psychology से हम कुछ कुछ insights मिला रहे हैं और हम कुछ theories बना रहे हैं. Key idea क्या है इस पे? Is that human mind and the social relations that it supports have been influenced by our evolutionary past as much as the human body. Biologists and everyone says that हमारी बॉडी जो है, हमारा ह्यूमन बॉडी हैज बिन, इसका एवोल्यूशन हुआ है. हर एक बॉडी ऑर्गन का इट इज बिकम व्हाट इट इज. इट वाजंट लाइक दिस जैसे अभी है, वो ऐसे 10,000 साल पहले नहीं थी. द सेम अप्लाइज टू relations as well. हमारे जो social relations है, that have also evolved over time, right? Our social and cognitive mechanisms are seen as adaptations to problem faced by our ancestors. Whatever problems, whatever survival techniques they required, our ancestors required. So उनको जो जो प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की, उससे जैसे जैसे वो अडेप्ट होते गए, वैसे वैसे आज हमारे सोशल और कॉग्निटिव मैकेनिज्म्स बन गए हैं. The connection between social psychology and biology also has been highlighted by the development of social neuroscience, which is of course a kind of a new field जो use करती है, neuroscience के बहुत सारे methods use करती है. So what it does is हम लोग जब आपस में बात कर रहे हैं तो उनका ब्रेन का कौन सा एरिया जो है वो एक्टिव है, राइट? हम एमआरआई के थ्रू या बाकी हम मशीन्स के थ्रू वी कैन जज. तो इसमें सोशल न्यूरोसाइंस का बेसिकली काम है. Then the second discipline we talk about where social psychology can be linked to, it is economics. अब economics is again a topic, a subject which is again multifaceted in nature, right? Because it which analyzes how people make trade-offs,
लोग कैसे ट्रेड ऑफ करते हैं, लोग कैसे स्कार्स रिसोर्सेज का यूज करते हैं, अपने आप में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. People want to study how business is done, how the stock market works. Abhi there is a new subject which has started, which is behavioral economics. कि लोग कैसे पैसे खर्च करते हैं अपनी सैलरी का, लोग किस तरीके से, अमीर लोग जो है वो कैसे खर्च करते हैं पैसा, गरीब लोग हैं वो कैसे कैसे पैसा खर्च करते हैं, लोगों के क्या हैबिट्स होती हैं मनी से रिलेटेड, which makes them rich or which make them poor. All this comes under behavioral psychology. बार्गेनिंग हम लोग कैसे करते हैं, नेगोशिएट कैसे करना है, पब्लिक गुड्स प्रॉब्लम जो हम बात करते हैं, ये सारा का सारा जो चीजें है, दिस कम्स अंडर बिहेवियरल इकोनॉमिक्स. तो इसमें इट अप्लाई फाइंडिंग्स फ्रॉम रिसर्च एंड एरर्स एंड बाइसेस इन सोशल डिसीजन मेकिंग टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल मेक इकोनॉमिक डिसीजन. मेरे को एक चीज खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए, दैट इज वेयर बिहेवियरल इकोनॉमिक्स टेक्स प्लेस. Now the next discipline we talk about is sociology. Now, social psychology and sociology, they have very strong ties because social psychology is focused on the interaction between individual and their social context. Sociology क्या है, वो ज्यादातर individual को छोड़ के it focuses on the study of societies and the way in which their institutions या उनके स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं वो कैसे इंडिविजुअल की लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं. तो सोशियोलॉजी में जो मेन फोकस रहता है वो सोसाइटी और उनके इंस्टीट्यूशन एज अ होल पे रहता है. But when we talk about social psychology, the main focus is an individual's behavior, an individual's feelings, thoughts, experiences, right? Now there is of course इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल में तो हमने किया है कि एचआर में बहुत बड़ा रोल है, मैनेजमेंट में जो हम, और अब से तो आईआईएम तो कहीं पे भी एमबीए के क्लासेस में देयर आर लॉट ऑफ साइकोलॉजी क्लासेस दे आर बीइंग गिवन बिकॉज एमबीए में मैनेजमेंट में दे आर रिकॉग्नाइजिंग द रोल ऑफ साइकोलॉजी and the role it plays in future managerial roles, right? Then social psychology also helps advertiser and marketing. Marketing आपको समझना है कि किसी भी प्रोडक्ट का मार्केटिंग कैसे होगा, social psychology play a role, right? As simple as अभी हम देख रहे हैं, in this phase of Instagram जहाँ पे सारी चीजें memes और रील्स के बेसिस पे देखी जाती है, तो लोग कैसे एडवर्टाइजमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं ताकि इसका मीम अच्छा बन सके और लोगों को पसंद आए, लोगों को मजा आए, ताकि और एंगेजमेंट इंक्रीज हो सके. Everything is social psychology. Public health initiatives, by understanding health related behavior such as adopting healthy habits, medical advice कैसे कर सकते हैं, इस पे हमारा सारा social psychology यूज होता है. ये टॉपिक लिंकेज विद डिसिप्लिन समझ आया? मैम वी कैन इंक्लूड इन सोशल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल्स थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड बिहेवियर. वो बेटा सोशल साइकोलॉजी की डेफिनेशन अगर आप पढ़ोगे, एल्पोर्ट की हमने कल पढ़ी थी, फ्लॉयड एल्पोर्ट ने जो दी थी, इट इज सिमिलर ओनली कि हम, इट इज अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल थॉट, फीलिंग्स एंड बिहेवियर is influenced by the actual imagined or implied presence of others. That is the complete definition of social psychology we talk about. Guys, you need to be active. I need a thumbs up at every topic I finish because I think उससे it becomes a little clear कि आप लोग सोए नहीं हो सब. Okay, great. Ma'am, so the social psychology is sociology, but with more individual scope included. बच्चा ये कहना गलत होगा बिकॉज सोशियोलॉजी में हम इंडिविजुअल पे तो फोकस कर रहे हैं, बट हम सोशियोलॉजी में जनरली हम थॉट्स और फीलिंग्स और इमोशंस की बात नहीं करते हैं. ये सोशल साइकोलॉजी में हम साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं ना, कि चाहे वो हमारा अग्रेशन हो, लोग एक दूसरे को हेल्प कैसे कर रहे हैं, मैं खुश हूँ या मेरी ओवरऑल वेलबींग क्या है, दीज आर कॉन्सेप्ट्स जो हमें साइकोलॉजी में पढ़ाए जाते हैं. सोशियोलॉजी इन सब कॉन्सेप्ट्स को फोकस नहीं करती है. सोशियोलॉजी का मेन फोकस होता है कि सोसाइटीज कैसे फंक्शन करती हैं, एक इंस्टीट्यूट है वो कैसे फंक्शन करते हैं. अगर एक स्कूल है तो वो स्कूल एज एन इंस्टीट्यूशन कैसे फंक्शन कर रहा है. सोशियोलॉजी में एक सोसाइटी है, मान लो इंडिया एज ए सोसाइटी कैसे
मैनेज कर रही है, कैसे फंक्शन कर रही है, तो फोकस इज मोर ऑन सोसाइटी एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स वी आर टॉकिंग अबाउट। सोशल साइकोलॉजी में हम इंडिविजुअल की भी बात कर रहे हैं और हम साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं, बिकॉज इवेंचुअली इट इज सोशल साइकोलॉजी। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे, आई थिंक जस्ट हियर। Okay, now this is one of the most important topics, research in social psychology, and I believe me, this topic is going to come. I have a very strong feeling that ये आएगा topic. Okay, so social psychologist, of course, psychology में we all know research use होती है. Okay, so ranging from rigorously controlled experiments, हम बहुत सारे social psychologists, of course, हमने इनिशियली पढ़ लिया था कि बहुत सारी रिसर्च होती है, बहुत सारे फिनोमिनन हैं जो पढ़े जाते हैं। तो क्या रिसर्च यूज होती है, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च यूज होती है, ये सब हम अभी पढ़ेंगे। तो ऑफ कोर्स अब जब हम रिसर्च की बात करते हैं ना, तो हम दो में डिवाइड कर देते हैं रिसर्च को। एक होता है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज और एक होता है नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, राइट। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज की जब हम बात करते हैं, सोशल साइकोलॉजी जो में हम बहुत सारे कॉजल एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, ठीक है, कि इसकी वजह से ये हुआ, ये वेरिएबल इस चीज को अफेक्ट कर रहा है, राइट। तो दिस प्रोसीजर इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ हाइपोथेसिस। हमने एक हाइपोथेसिस क्रिएट किया। हाइपोथेसिस आप सबको पता होगा, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, हम एक टेंटेटिव अजम्पशन क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने हाइपोथेसिस क्रिएट की कि बच्चों को समझ आ रहा है आज का, ये मेरा अजम्पशन है, ये मेरा टेंटेटिव स्टेटमेंट है। अब ये एक्सेप्ट भी हो सकती है, रिजेक्ट भी हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ कोर्स इसके अगर आगे मैं डेटा कलेक्ट करती हूँ कि मैं आप सबसे अनोनिमस फीडबैक लेती हूँ कि कितने बच्चों को समझ आए, कितने बच्चों को नहीं समझ आए। मान लो क्लास में 20 बच्चे हैं, 20 में से 19 बच्चों को समझ आया कि क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है, या 18 बच्चों को समझ आया क्या पढ़ाया जा रहा है, तो मे बी आई से कि यस आई कैन एक्सेप्ट माई हाइपोथेसिस कि ज्यादातर बच्चों को क्लास में समझ आया। तो इसी तरीके से हम कोई भी एक्सपेरिमेंटल स्टडी जब शुरू करते हैं, हम एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, हम एक टेंटेटिव असम्पशन क्रिएट करते हैं, जिसको हम टेस्ट करते हैं फर्दर। वो हाइपोथेसिस जो है वो टेंटेटिव स्टेटमेंट है, वो गलत भी हो सकती है, सही भी होती है। हमारा पूरा जो रिसर्च है वो उसी को ही देखने में लग जाएगा कि वो जो स्टेटमेंट है वो सही है कि गलत है। फॉर एग्जाम्पल अगर बोले इफ द नंबर ऑफ पीपल, ये हमने स्टेटमेंट दी कि जैसे जैसे लोग जो है ग्रुप में इंक्रीज होते रहते हैं, वैसे वैसे वो ओवरऑल अपना कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ काम कम करते रहेंगे। अ, जिसको हम आगे कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे सोशल साइकोलॉजी में, सोशल लोकिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर बहुत बड़ा ग्रुप है, 50 लोगों का ग्रुप है, तो उसमें से अगर हमें उसको ग्रुप में कुछ हम प्रोजेक्ट बनाने के लिए देते हैं, तो वो 50 में से ना 10 लोग ही हैं जो एक्चुअली काम करेंगे, बाकी के लोग तो बस ऐसे ही कुछ नहीं करेंगे या बहुत हल्का हल्का कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे। इसको हम सोशल लोकिंग बोलते हैं। तो अगर मेरे को ये हाइपोथेसिस और प्रेडिक्शन टेस्ट करना है, तो मेरे को ऑफकोर्स एक ग्रुप साइज चाहिए होगा, मेरे को लोग चाहिए होंगे जिसका मैं डेटा कलेक्ट कर सकूं एंड उसका इम्पैक्ट देख सकूं, ठीक है। तो ऐसी स्टडीज में ना, तो ग्रुप साइज इज डिटरमाइन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिग्री ऑफ सोशल लोकिंग क्या बन जाएगा, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम वेरिएबल्स की बात करते हैं। मान लो जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया कि हमारी हाइपोथेसिस थी कि if the number of people in a group increases then the less hard each will work, ये हमारा सोशल लोकिंग। अब इसमें देयर गोइंग टू बी वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वन डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। एंड डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको हम एक्चुअली पढ़ना चाहते हैं, जिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके उसका इफेक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल को देखते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल इज द वन जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ, जो ग्रुप साइज था, कि हमने एक 5 बच्चों का ग्रुप बनाया, एक 10 बच्चों का ग्रुप बनाया, एक 15 बच्चों का ग्रुप बनाया। और अब हम देखते हैं कि किसमें काम ज्यादा अच्छे से होता है और किसमें ज्यादा बच्चे एक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद फिर डेटा कलेक्ट किया जाएगा एंड देन देयर इज गोइंग टू बी एनालिसिस। मेनी एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड इन द लैबोरेटरी, ऑफ कोर्स, जो हमें एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट देता है ताकि हम इजीली बच्चों को मैनिपुलेट कर सके, हमारे सारे वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सके और उसका ऑब्जर्वेशन अच्छे से कर सके, ठीक है। हम इसमें क्या होता है, हम ज्यादा कंट्रोल्ड वे में काम कर सकते हैं। रैंडम असाइनमेंट इजीली हो सकता है, बच्चों को रैंडमली असाइन कर सकते हैं हम पार्टिसिपेंट्स को।
दूसरा जो एक्सपेरिमेंट करने का तरीका होता है ये फील्ड एक्सपेरिमेंट होता है। फील्ड एक्सपेरिमेंट क्या है, विच आर कंडक्टेड इन द रियल वर्ल्ड, जो प्रॉपर लैब में नहीं किया जाता। फील्ड एक्सपेरिमेंट्स में भी हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं वेरिएबल की, बट ऑफ कोर्स उतना ज्यादा कंट्रोल हमारे पास नहीं होता जितना लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में होता है। Quasi experiments are also conducted in the real world, but involve the use of naturally occurring groups and hence एक वो random assignment को हम use करते हैं। अगर हम अभी हमने जैसे 3 में हम डिवाइड करेंगे लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स, फील्ड एक्सपेरिमेंट्स एंड क्वासी एक्सपेरिमेंट्स की हम बात करेंगे। So laboratory experiments, if the experiment में vary or manipulate the environment and उसपे कंट्रोल और एक्सट्रेनियस फैक्टर्स जो होते हैं, जो बाकी के फैक्टर्स जो उसको कंट्रोल में भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हम उसको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे क्या होता है हमारी स्टडी बहुत कंट्रोल्ड वे में चलती है। हमें लगता है कि एवरीथिंग इज अंडर आवर कंट्रोल। जो लैबोरेटरी अगर फील्ड एक्सपेरिमेंट्स है उसमें नहीं हो पाता। फील्ड एक्सपेरिमेंट में तो कोई कुछ भी हो सकता है ना। अगर मैं एक पार्क में एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ तो फिर बारिश आ सकती है, एकदम से वेदर चेंज हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, राइट। कोई एकदम से एक्सीडेंट हो सकता है, कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रोसेशन जा रही है, कोई बारात जा रही है वहां से निकल के, जिससे डिस्टर्बेंस हो गई। तो एक फील्ड एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, पर लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में वो सारी चीजें हमारे कंट्रोल में होती है। क्वासी एक्सपेरिमेंट्स की बात करें, क्वासी एक्सपेरिमेंट्स का मतलब है इट दे इन्वॉल्व नो मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एट ऑल, बट कंफाउंडिंग वेरिएबल्स जब हम बात करते हैं, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स आर वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट करते हैं। हम उनको पढ़ नहीं रहे हैं बट वो इफेक्ट करते हैं हमारी स्टडी को। क्वासी एक्सपेरिमेंट्स कैन बी यूज्ड व्हेन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड फॉर प्रैक्टिकल रीजंस, जैसे रेस और जेंडर। अब आप किसी का जेंडर को चेंज नहीं कर सकते ना, या किसी का कल्चर को चेंज नहीं कर सकते। जो इंडियन है वो इंडियन ही रहेगा। अगर मैं इंडियंस और यूएके के अगर मैं इंडियंस और अमेरिकन में एक स्टडी कर रही हूँ जहाँ पे मैं दोनों के ग्रुप को कंपेयर कर रही हूँ, तो जो इंडियन एक्चुअल इंसान है उसको मुझे इंडियन के ग्रुप में ही रखना पड़ेगा ना, इसमें रैंडम असाइनमेंट कुछ काम नहीं करेगा। अगर मैं मेल और फीमेल में को कंपेयर कर रही हूँ तो जो मेल का इंसान है उसको मुझे मेल के ग्रुप में ही डालना पड़ेगा, फीमेल है उसको मुझे फीमेल वाले ग्रुप में ही डालना पड़ेगा। आई कैन नॉट मैनिपुलेट दीज वेरिएबल्स, राइट। यहाँ तक मुझे बताओ समझ आया नॉन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप तो मतलब एक्सपेरिमेंटल, तभी हम उसको एक्सपेरिमेंटल में देखेंगे। रबिजुल आई डिडंट गेट इट, एनी ग्रुप मतलब? बच्चे कंफाउंडिंग वेरिएबल वो, अच्छा पहले हम इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट पे मैं समझा देती हूँ, देन आई एम गोइंग टू से कंफाउंडिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं। बेटा जब हम रिसर्च करते हैं ना हम वेरिएबल्स पढ़ते हैं, राइट। मैं पढ़ना चाहती हूँ इमोशनल, मैं पढ़ना चाहती हूँ इंटेलिजेंस, और मैं ये देखना चाहती हूँ कि क्या मेल और फीमेल, हमारा जेंडर क्या है उससे फर्क पड़ता है कि हमारी इंटेलिजेंस कितनी है, ठीक है। तो हमारा जो इंटेलिजेंस है जो मैं पढ़ रही हूँ, जो मेन फोकस है हमारा, वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा जिसको मैं चेंज नहीं कर सकती, राइट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, मेल और फीमेल, कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेल और फीमेल में इंटेलिजेंस का क्या लेना देना है, दोनों ग्रुप में क्या इनकी इंटेलिजेंस इक्वल है, क्या इनकी इंटेलिजेंस इक्वल नहीं है, क्या एक की ज्यादा है एक की कम है। तो ऐसे जब हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो हम वेरिएबल्स को एक, हमारा कुछ वेरिएबल, एक वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, कुछ वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जिनको हम पढ़ना चाहते हैं, जो मेन फोकस है हमारी स्टडी का, जिनको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ठीक है, जिनको हम चेंज नहीं करते। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, जिनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिनके इफेक्ट को हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे पढ़ते हैं, राइट। So independent variable is the one which we can manipulate, which we can change, or dependent variable is the one which we do not manipulate, we do not change.
ये दोनों वेरिएबल जो होते हैं वो हमारा मेन फोकस होता है रिसर्च का, हम ये दोनों वेरिएबल्स पढ़ते हैं। कंफाउंडिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं? कंफाउंडिंग वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं, वो फैक्टर्स होते हैं जिनको हम पढ़ते नहीं हैं, जो हमारे हम रिसर्च में हमारा फोकस नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं इन दोनों वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कितनी पढ़ाई की है, अगर मैं मेल फीमेल में देखूं तो मैं मेल फीमेल में मेरे को कुछ कंपाउंडिंग वेरिएबल्स होंगे ना जो ध्यान रखने पड़ेंगे। क्या पता, अगर मेरा रिजल्ट ऐसा आ रहा है कि लड़के ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि क्या पता लड़के, मैंने सारे वो लिए हों जो जिन्होंने मास्टर्स कर रखी है, और मैंने लड़कियों का सैंपल वो लिया हो जिन्होंने 10th के बाद पढ़ाई नहीं की है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ कंफाउंडिंग वेरिएबल, द एजुकेशन दे है, राइट, द प्लेस दे बिलोंग टू, ये सारे फैक्टर्स हैं जो हम पढ़ नहीं रहे हैं, बट दे विल इफेक्ट द एक्चुअल रिसर्च, हमारा जो रिजल्ट आएगा। इन सबको कंफाउंडिंग वेरिएबल्स बोलते हैं। तो रिसर्चर की कोशिश ये रहती है कि हम जितने कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकेंगे, हमारे लिए उतने ही रिजल्ट अच्छा आएगा रिसर्च में। इज एबल टू एक्सप्लेन इट? और कोई क्वेश्चन कि हम आगे बढ़े, फिर हम नॉन एक्सपेरिमेंटल में बढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंटल समझ आया? एक्सपेरिमेंटल में हमने फील्ड पढ़ा, लैब पढ़ा, क्वासी एक्सपेरिमेंट्स पढ़े, कैसे सोशल साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो हमने देखा। ओके, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज की बात करते हैं। नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज क्या होते हैं? जो ज्यादातर ऐसे नहीं है कि हम उसमें दो ग्रुप्स को या तीन ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे हैं, या कॉजल क्वेश्चन हम नहीं देख रहे कि इसकी वजह से ये होता है। हमारा ज्यादातर इसमें इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल हम बहुत ज्यादा नहीं देखते। नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज जो होती है ना, दे आर मोर डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। हम कोई चीज डिस्क्राइब करना चाहते हैं, हम कोरिलेशनल क्वेश्चन जो होते हैं, तो ये जो है, ये दो वेरिएबल्स कोरिलेटेड हैं, अब इसकी वजह से ये हो रहा है, उसकी वजह से ये हो रहा है, ये हमें नहीं पता, बट इसमें कुछ ना कुछ लिंक तो है। अगर हमें ये सब स्टडीज करनी है तो हम नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज जो मेथड है वो यूज करते हैं। ठीक है, अब ये सारे ना अलग अलग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं जो नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में यूज होती है। पहला है सर्वेज। सर्वे जनरली क्या होते हैं? आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में कोई ना कोई सर्वे भरा होगा। सर्वेज हम सिंपल, आप मॉल में भी चले जाओ तो वहां पे बहुत सारे लोग ना सर्वे ले रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट का, कि मैम आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, आप सर्वे भरना चाहते हैं, आप फीडबैक फॉर्म भरना चाहते हैं। ये क्या है? ये सब सर्वे है। हमने सर्वे क्या हम यूज कर रहे हैं? टू फाइंड आउट व्हाट अ ग्रुप ऑफ पीपल बिलीव अबाउट एन इशू, कि लोग इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं, लोग इस चीज के बारे में क्या, उनकी नॉलेज है, वो क्या इस चीज के बारे में समझते हैं, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं। ये सर्वे होता है। तो सर्वे क्या होता है? इट इज अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड ऑफ अ सैंपल ऑफ पीपल। एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं और उनसे आपसे उसके आंसर्स पूछे जाते हैं कि आप क्या सोचते हैं उनके बारे में। अब सर्वे बनाने में भी ना बहुत ध्यान दिया जाता है कि सर्वे के जो क्वेश्चंस होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए कि इंसान को समझ में आए। ठीक है, लीडिंग नहीं होने चाहिए। कि लीडिंग क्वेश्चन कैसे हुआ कि मैं पूछना चाहती हूँ कि आप, मेरा एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल मैंने चिप्स बनाए हैं नए, तो मेरा क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि आपको चिप्स कितने अच्छे लगे। ये तो लीडिंग क्वेश्चन हो गया कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मेरा अजम्पशन है ये कि उनको अच्छे ही लगे होंगे, अब कितने अच्छे लगे होंगे ये बताओ। अगर मेरा क्वेश्चन ये होता है कि आपको चिप्स कैसे लगे, तो वो उसका आंसर अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो दीज टाइप्स ऑफ वर्ड्स, हम किस तरीके से वर्ड्स को फ्रेम कर रहे हैं, हम सेंटेंस बना रहे हैं किस तरीके से बना रहे हैं, उसकी लैंग्वेज कैसी है, क्या हम क्वेश्चन को बहुत लंबा बना रहे हैं जिससे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कि हम क्वेश्चन को बहुत, स्टेटमेंट्स को बहुत क्रिस्प बना रहे हैं, बहुत क्लियर बना रहे हैं, ऐसी लैंग्वेज में बना रहे हैं कि सबको समझ में आए। तो इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि क्वेश्चन की ऑर्डरिंग कैसी है, क्वेश्चन का लेंथ कितना होगा, कैसे आप, मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहेगा, कैसे पूछेंगे, लोगों से कॉल कर करके पूछेंगे, उनको व्हाट्सएप पे लिंक भेजेंगे, आप उनको पर्सनली जाके पूछेंगे। ऑल दीज थिंग्स आर टू बी फोकस्ड ऑन। देन देर आर इंटरव्यूज एंड फोकस ग्रुप। इंटरव्यूज वी ऑल नो, हम डिस्क्रिप्टिव पिक्चर हमें देते हैं इंटरव्यूज। इंटरव्यूज भी फिर आगे जाके हम पढ़ते हैं कि अलग अलग तरीके के होते हैं, स्ट्रक्चर्ड होते हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होते हैं। तो रिसर्चर्स बहुत, इंटरव्यूज और फोकस ग्रुप बहुत ही नॉर्मल फ्रीक्वेंटली यूज मेथड है जो हम क्वालिटेटिव डेटा जब कलेक्ट करते हैं तो हम यूज करते हैं, जिससे हमें बहुत ही ज्यादा ना डिस्क्रिप्टिव
डिस्क्रिप्टिव आंसर्स मिलते हैं। जो सर्वे में इंसान कितना लेगा ना, इंसान कितना एमसीक्यू में हमें कितना ही पता चल जाएगा। बट अगर हम किसी को इंटरव्यू करने बैठेंगे और हम उसका आधे एक घंटे का इंटरव्यू लें कि सर आप बताओ चिप्स कैसे लगे आपको, आपको पैकेजिंग कैसी लगी, तो हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलेगा बोलने पे। वो क्या सोचते हैं, वो पैकेजिंग के बारे में क्या सोचते हैं, वो टेस्ट के बारे में क्या सोचते हैं, उनका फीडबैक क्या है कि हम और कैसे चीजें बदल सकते हैं किसी भी चीज के बारे में। इंटरव्यूज कैन बी अबाउट एनीथिंग, राइट? तो हम इंटरव्यूज एंड फोकस ग्रुप्स भी यूज। फोकस ग्रुप्स क्या होते हैं? दे यूजुअली इन्वॉल्व 4 to 8 पीपल, जिनको एक साथ बिठाया जाता है, 4 से 8 लोगों को। अलग अलग साइजेस के फोकस ग्रुप्स होते हैं। एक फैसिलिटेटर होता है जो कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट करता है और किसी टॉपिक के बारे में सबको बोला जाता है कि आपका क्या कहना है, आपका क्या कहना है। तो एक तरीके से वो एक बड़ी सी टेबल पे कॉन्वर्जेशन होती है जिसको रिकॉर्ड किया जाता है, जिसको समझा जाता है कि कैसे हो रहा है। ठीक है। सो विदाउट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द काइंड्स ऑफ कनेक्शन दैट दे मेक, इससे क्या होता है कि बहुत ओपनली डिस्कस होता है। बहुत सारी चीजें सामने आती है जो नॉर्मल सर्वे में या इंटरव्यू में सामने नहीं आएंगी। वो फोकस ग्रुप्स बिकम मोर इजी, राइट? देन वी टॉक अबाउट ऑब्जर्वेशनल स्टडी। जो थर्ड हम नॉन एक्सपेरिमेंटल की बात करते हैं, ऑब्जर्वेशनल स्टडी नाम से ही पता चल रही है, जब हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं, पीपल आर नेचुरली बिहेविंग इन सम वे और द अदर और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, इन अंडरस्टैंडिंग वर्क प्लेस कम्युनिकेशन वन माइट मेक ऑब्जर्वेशन ऑफ इंटरेक्शन अराउंड अ वाटर कूलर और अदर ड्रिंक्स लोकेशन, और स्टाफ रेस्टोरेंट में कैसे बिहेव हो रहा है, या बच्चे कैंटीन में कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो मैं बस कैंटीन में जाके बैठ जाऊंगी एंड आई विल नो कि बच्चे किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। बच्चों का बिहेवियर इन क्लासरूम, बच्चों का बिहेवियर इन प्लेग्राउंड, बच्चों का बिहेवियर इन कैंटीन, अगर मेरे को सिंपली ऑब्जर्व करना है तो मैं एक जगह जा जाके वहां पे ऑब्जर्व कर लूंगी। तो दैट इज नॉट एन ऑब्जर्वेशन। केस स्टडी क्या होता है? तो केस स्टडी बहुत ज्यादा यूज होती है। हम जनरली हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट में सिंगल केस स्टडी बहुत यूज होती है। सो अनलाइक एक्सपेरिमेंट्स और सर्वेज, केस स्टडी डू नॉट एम टू जनरलाइज फ्रॉम द सैंपल। इसमें हमारा केस स्टडी का मतलब ये नहीं होता कि हम जनरलाइज कर सके। मेन फोकस ये होता है कि हम जिसके बारे में पढ़ना चाहते हैं उस सिंगल केस के बारे में हम जितनी इन डेप्थ पढ़ सकें उतना अच्छा है। So as a consequence, case studies tend to employ multiple methods of research so as to generate a comprehensive picture of the case. मेरे को केस स्टडी करनी है किसी क्रिमिनल की, तो मैं उस क्रिमिनल के बारे में जितना जान सकती हूँ, मे बी थ्रू इंटरव्यू, थ्रू फोकस ग्रुप, डिफरेंट मीडिया सोर्सेज से, उसकी हिस्ट्री से, उसके पुराने एजुकेशन से, उसके उसके माँ बाप को इंटरव्यू करके, उसकी फैमिली मेंबर्स को इंटरव्यू करके, जितने जितने अलग अलग मेथड से मैं उस इंसान के बारे में जान सकती हूँ, मैं उसके बारे में जानूंगी, तो उसको हम बोलेंगे केस स्टडी, राइट? हम इस जितना इन डेप्थ में हम जा सके उतना पॉसिबल। देन अनदर एक्सपेरिमेंटल मेथड इज मीडिया एंड अदर डेटा सोर्सेस, राइट? अब फेसबुक का कंटेंट, ट्विटर का कंटेंट, राइट? इतनी मूवीज का हमें कंटेंट है, देयर सो मेनी सेकेंडरी रिसोर्सेज व्हिच आर अवेलेबल। उनका कंटेंट हम कैसे यूज कर सकते हैं, उनका एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, राइट? अगर मुझे देखना है कि आज के टाइम पे क्या मीम्स चल रही हैं, व्हाट इज द मीम्स जो कॉलेज स्टूडेंट्स यूज करते हैं या एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पे जाना पड़ेगा, मुझे लोगों का यूजेस देखना पड़ेगा कि कौन किसको कितनी मीम्स दे रहा है, किस मीम पे ज्यादा लाइक है, किस मीम पेज को सबसे ज्यादा कॉलेज स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। तो इन सब मीडिया सोर्सेस से और अदर डेटा सोर्स से डेटा कलेक्ट करना, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिसर्च मेथड जो हम सोशल साइकोलॉजी में यूज करते हैं। इज इट क्लियर? अभी हम एक टॉपिक हमने खत्म किया। ये स्टडिंग अबाउट द पर्टिकुलर इशू और प्रॉब्लम। पर्टिकुलर इशू और प्रॉब्लम से ज्यादा हम किसी चीज के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला कि मेरे को केस स्टडी करनी है डीयू की, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, मेरे को केस स्टडी करनी है, तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में जानना चाहूंगी कि उसके क्या हिस्ट्री है, डीयू के बारे में लोग क्या सोचते हैं। किसी भी केस स्टडी तो किसी भी चीज के बारे में हो सकती है ना। अगर आप एक आगे जाके अगर आप एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं, राइट? क्लिनिकल साइकोलॉजी में आपके पास एक पेशेंट आता है, तो आप उस इंसान की पूरी केस स्टडी बनाते हैं, उसकी केस हिस्ट्री बनाते हैं, उसको केस स्टडी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, आप उसके बारे में सारा कुछ जानना चाहते हैं, उसकी एजुकेशन, उसके फादर, उसके मदर क्या, मदर के बारे में, उसके फादर के बारे में, उसके पेरेंट्स से आप बात करते हैं, उसकी एजुकेशन क्या है, यू नो एक चीज के बारे में सब कुछ जानना, सारे पैरामीटर्स के थ्रू जानना, उसको हम केस स्टडी बोलते
ओके, ऑल राइट। तो थोड़ा सा जल्दी करके हम एक टॉपिक समझाने की कोशिश करेंगे आज, सैडली ज्यादा हो नहीं पाया। तो एथिकल गाइडलाइंस की हम बात करते हैं। ऑफ कोर्स कहीं पे भी रिसर्च हो रही है तो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिहेव एथिकली। देयर आर रूल्स जो साइकोलॉजिस्ट को फॉलो करने पड़ेंगे। रिसर्च के नाम पे हम कुछ भी नहीं कर सकते ना, हम लोगों को मार नहीं सकते, हम लोगों को हार्म नहीं पहुंचा सकते। देयर आर सम रूल्स, सम एथिक्स वी हैव टू फॉलो, राइट। सो ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी है कोड ऑफ ह्यूमन रिसर्च एथिक्स, जो अपनी गाइडेंस देती है इन मैटर्स में, और उन्होंने कुछ एथिक्स दिए हैं। तो पहला एथिक्स होता है, एथिकल कंसिडरेशन पहला होता है रिस्क का, कि पार्टिसिपेंट शुड नॉट बी एक्सपोज टू रिस्क ऑफ हार्म, चाहे वो फिजिकल हार्म हो, साइकोलॉजिकल हार्म हो। पार्टिसिपेंट जो है, जो आपकी रिसर्च में आके पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको किसी भी तरीके का हार्म नहीं होना चाहिए, राइट। दूसरा होता है वैलिड कंसेंट। वैलिड कंसेंट मतलब कि पार्टिसिपेंट्स को सारी इंफॉर्मेशन गिवन इनफ इंफॉर्मेशन कि वो किस चीज में आ रहे हैं। उनको आप सच सच बताइए कि सर ये स्टडी है मेरी, ये मेरी साइकोलॉजी की रिसर्च है, मैं ये पढ़ रहा हूँ, इसमें आपको ये करना पड़ेगा। और फिर इनको बिना जोर जबरदस्ती के पूछेंगे कि आप वो करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं कि किसी को जबरदस्ती बांध के प्लीज 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 करके या धमकी दे के आप ऐसे पार्टिसिपेंट्स को नहीं लेके आ सकते। इंसान का प्रॉपर कंसेंट होना चाहिए, तभी वो रिसर्च में पार्टिसिपेट करेंगे। द थर्ड वन इज कॉन्फिडेंशियलिटी। हर एक पार्टिसिपेंट की जो इंफॉर्मेशन है, चाहे उनके स्कोर हो, चाहे आप कोई डेमोग्राफिक कुछ भी ले रहे हैं, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेंगे। उन्होंने कुछ भी आपको डेटा प्रोवाइड किया, अगर आप इंटरव्यूज दे रहे हैं अलग अलग लोगों के, तो इंटरव्यू में वो कुछ बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है आप वो जाके दूसरे लोगों को बता रहे हैं कि इसने मेरे को ये बोला, उसने मेरे नहीं। कॉन्फिडेंशियलिटी मस्ट बी मेंटेन। कोई भी आप थर्ड पार्टी से, किसी और से आप उस इंफॉर्मेशन को ट्रेड नहीं कर सकते हैं। द नेक्स्ट एथिकल कंसिडरेशन इज डिसेप्शन। डिसेप्शन क्या, लोगों को बेवकूफ बनाना है, उनको डिसीव करना। इट शुड बी अवॉइडेड अनलेस एसेंशियल टू द रिसर्च ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए अनलेस इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक मेरिट है। और इवन अगर आप डिसेप्शन यूज कर रहे हैं, डिसेप्शन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोगों को हार्म कर रहे हैं। डिसेप्शन के बाद आप उसको, जब वो पूरा एक्सपेरिमेंट कुछ भी खत्म हो जाता है, तो आपको वो बताना पड़ेगा कि देखो मैंने आपसे इस चीज में झूठ बोला और मैं नहीं, और हमने एक्चुअल में ये काम किया है। और अगर उनको मतलब उनको पूरा डिब्रीफ करना पड़ेगा इसके बारे में, विच टेक्स अस टू आवर नेक्स्ट एथिकल कंसिडरेशन व्हिच इज डीब्रीफिंग। डीब्रीफिंग क्या बोलती है? Researchers should minimize any negative effects of their research on participants by providing a throughout thorough debriefing at the end of the research, especially where deception has been employed. अगर हमने डिसेप्शन का यूज किया, हमने किसी भी चीज का यूज किया, तो हमें डीब्रीफिंग के बाद कि सर मैंने ये रिसर्च की है, आई होप आपको अच्छा लगा हो, आपको कोई दिक्कत ना हुई हो, ये मेरा काम था। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप कुछ मेरे से सवाल पूछना चाहते हैं, आपका कोई डाउट है, तो आप क्लियर कर सकते हैं। और आप अपनी तरफ से सब कुछ डीब्रीफ करेंगे कि ये मेरी रिसर्च है, ऐसे ऐसे है, आपको स्कोर्स पता चल सकते हैं। उनको कोई भी साइकोलॉजिकल हार्म या फिजिकल हार्म नहीं होना चाहिए किसी भी चीज, राइट। तो दीज आर दी एथिकल कंसिडरेशंस वी नीड टू टेक केयर ऑफ while doing the research, while conducting the research. सबको क्लियर है? Hmm, एक लास्ट टॉपिक बचा है। आई वुड बी मोर देन हैप्पी अगर आप लोग मुझे 5 मिनट दे दो, तो मैं वो टॉपिक पढ़ा दूं ताकि हमारे ये यूनिट खत्म हो जाए, प्लीज। वुड इट बी ओके फॉर एवरीवन? 5 मिनट्स? ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच गाइस। ओके, तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस यूनिट में, इट इज द यूज ऑफ डिसेप्शन इन सोशल साइकोलॉजिकल स्टडीज। अब हमने एथिकल कंसिडरेशन में पढ़ा कि डिसेप्शन बहुत अवॉइड करना चाहिए जब तक बहुत 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 ज्यादा जरूरी नहीं है। बट अभी भी बहुत सारे रिसर्च में हम डिसेप्शन यूज करते हैं, बिकॉज कहीं कहीं कुछ कुछ स्टडीज में डिसेप्शन इज इम्पोर्टेंट। बिना डिसीव करे, बिना डिसेप्शन के, कुछ इंफॉर्मेशन छुपाए बिना हम एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं कर सकते। Social psychologists face a particular problem because they sometimes need to use deception to conceal the true purpose. एक मिनट। यस,
तो कभी कभी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स में ना, कुछ कुछ रिसर्च में इट बिकम्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि हमें रिसीव कुछ इंफॉर्मेशन छुपाए बिना हमारे लिए हम एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा रिसर्च, अगर मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप लोग गरीब लोगों के बारे में क्या सोचते हो, या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में क्या सोचते हो, या मैं ये देखना चाहती हूँ कि अर्बन लोगों का रूरल लोगों के प्रति क्या एटीट्यूड है, तो अगर मैं उनको पहले ही बोल दूंगी कि सर मेरा ये, मैं ये चीज देख रही हूँ, और मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपका, मेरे क्वेश्चन जो है वो ये डिसाइड करेंगे कि आप रूरल लोगों को आपका पीछे प्रति क्या एटीट्यूड है, तो चांसेस आर कि ऑफकोर्स वो झूठ बोल देंगे या वो सोशल डिजायरेबल रिस्पॉन्सेज देंगे, राइट। तो ऐसी सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए हम थ्रू पर्पस जो है स्टडी का, वो हम छुपाते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल, in investigating the extent to which people hold racially prejudiced attitudes, अगर किसी, हम ये देख रहे हैं कि लोगों के स्टीरियोटाइप्स और प्रेजुडिस क्या है अबाउट अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, तो हम ये नहीं बता सकते कि सर हम ये इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं और हम ये क्वेश्चन पूछेंगे कि आपका इस पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को लेके क्या एटीट्यूड है, हम ये उनको नहीं बता सकते। बट अगेन ऑन दी अदर हैंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किसी भी पार्टिसिपेंट को कोई डिस्कम्फर्ट ना पहुंचाएं, ठीक है। उनको कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे डिसेप्शन में। सोशल साइकोलॉजिस्ट, of course, you know, there is a debate going on. People are divided कि the use of deception in their research कि सही है कि नहीं है. But participants should be provided with as much information about the study as is feasible given the nature of the research or questions being asked. And of course, उसके बाद deception अगर आप use कर रहे हैं, debriefing should provide participants with the full explanation of the features of the study, including its true aims and objectives and the reasons for the need to use temporary deception. We are done with the unit. I am grateful to you guys कि आप लोगों ने 3-4 मिनट एक्स्ट्रा दिए। Again, anger questioner मतलब part, I didn't get your comment, but okay. Okay, anything else you want to ask? No, anger questionnaire is again debatable. You know, आप किसी को गुस्सा करने पे मजबूर कर रहे हो. Again, it is quite debatable. See, a lot of psychological studies, इसमें हमें एथिक्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आप जानबूझ के किसी को गुस्सा, किसी को उदास नहीं फील करा सकते, बिकॉज इट इवेंचुअली, आप किसी को खुश तो करवा सकते हो, आपको कोई किसी को हैप्पी फील कराना तो आप वो करा सकते हो, बट आप किसी को गुस्सा या किसी को इंटेंशनली सैड फील नहीं करा सकते। इट इज अगेन एथिकली इनकरेक्ट, जिसकी वजह से अगेन बहुत सारी रिसर्चेस नहीं होती है, बट देन इट इज फॉर द गुड ऑफ द पीपल ओनली ना, बिकॉज देन व्हाट एक्सटेंट, किस एक्सटेंट तक हम क्या क्या चीजें लोगों के साथ कर सकते हैं, दैट आल्सो बिकम्स इम्पोर्टेंट। Okay, so some important questions from the chapter you are asking. Okay, so research, ये जो पूरा टॉपिक था रिसर्च का, जिसमें मैंने एक्सपेरिमेंटल भी कवर किया, नॉन एक्सपेरिमेंटल भी कवर किया, दिस आई बिलीव इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज ये बहुत लंबा टॉपिक है। इसमें आपको रिसर्च में आप पहले थोड़ा सा सोशल साइकोलॉजी का आप इंट्रोडक्शन दोगे, देन आप बताओगे कि दो तरीके की रिसर्च होती है, एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल। देन एक्सपेरिमेंटल में भी आप बता रहे हो कि एक्सपेरिमेंटल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, हम कैसे, हम हाइपोथेसिस हम बनाते हैं। देन आप अलग 3 तरीके के एक्सपेरिमेंट्स बता रहे हो, लैब एक्सपेरिमेंट, फील्ड क्वासी एक्सपेरिमेंट। देन उसके बाद आप नॉन एक्सपेरिमेंटल पे आ रहे हो, नॉन एक्सपेरिमेंटल पे आप सर्वेज, इंटरव्यू, मीडिया रिसोर्सेज, फोकस ग्रुप, ऐसे अलग 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 चीजों के बारे में बता रही हूँ। तो रिसर्च एंड एथिकल कंसिडरेशन ड्यूरिंग रिसर्च, आइडियली एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत इजीली बन सकता है कि आप बताओ कि रिसर्च कौन कौन सी यूज होती है सोशल साइकोलॉजी में, एंड व्हाट आर द एथिकल कंसिडरेशंस दैट नीड टू बी टॉक्ड अबाउट। तो एक तरीके से रिसर्च वाला 10 नंबर का बन जाएगा, और एथिकल कंसिडरेशन जो मैंने हम आपको बताई, कंसेंट होना चाहिए, दिस होना, डिसेप्शन वगैरह, ये सब वो सब आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। तो एक तरीके से दिस आई थिंक इज अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट कैन कम। देन ऑफ कोर्स यू नो, ऐसे करके दो क्वेश्चंस को मिला के तो बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं ना। लिंकेजेस का पूछ सकते हैं एक शॉर्ट नोट की तरह कि व्हाट इज द लिंक ऑफ सोशल साइकोलॉजी विद अदर डिसिप्लिन्स।
disciplines of psychology, also disciplines of other fields also. सोशल साइकोलॉजी का क्या है, व्हाट इज सोशल साइकोलॉजी, इसमें आपका पूरा नेचर स्कोप जो इंट्रोडक्शन पूरा है, दैट यू शुड नो अबाउट, बिकॉज आप कोई भी एग्जाम्पल कोई भी चीज शुरू करोगे उसमें आप सोशल साइकोलॉजी का थोड़ा इंट्रोडक्शन तो आधे पेज अराउंड का दोगे ही दोगे. So all these type of questions I believe can come. So again, I won't recommend you कि आप कोई भी topic छोड़ के जाओ, because there can be a question of 15 marks where they ask about origins of social psychology, जिसमें वो आपसे सारा उसका history, what is social psychology, उसका कैसे field ने shape लिया, डेवलपमेंट्स क्या है, रिसेंट डेवलपमेंट सोशल साइकोलॉजी की, एंड लिंकेजेस विद अदर डिसिप्लिन्स बताओ. तो ये आप एक दो क्वेश्चंस को मिला के देखेंगे 15 मार्क का क्वेश्चन. देन रिसर्च इन सोशल साइकोलॉजी कैन अनदर बी अ 15 मार्क क्वेश्चन, जिसमें वो आपसे एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल, एथिकल गाइडलाइंस, यूज ऑफ डिसेप्शन सारा कुछ पूछ सकते हैं. राइट. इज देयर एनी क्वेश्चन फॉर शॉर्ट नोट राइटिंग बेसिस? शॉर्ट नोट में बच्चा आ सकता है, शॉर्ट नोट में आपसे एथिकल गाइडलाइंस पूछ सकते हैं, एथिकल गाइडलाइंस एंड डिसेप्शन, वो आपसे वो शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं. शॉर्ट नोट में आपसे लिंकेजेस पूछ सकते हैं पूरा, कि सोशल साइकोलॉजी का लिंक बताओ विद साइकोलॉजी के सब्जेक्ट्स, एंड आल्सो विद सब्जेक्ट्स हु आर व्हिच आर आउटसाइड साइकोलॉजी, जो हमने पढ़ा, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, ये सब. तो शॉर्ट नोट में भी देयर आर अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कैन बी मेड, आई विल. ओके. और कुछ किसी को कुछ पूछना है, और शुड वी एंड द सेशन? टुमारो वील बी स्टार्टिंग विद यूनिट 2, बिकॉज ऑलरेडी हमने दो क्लास एक यूनिट को दे दिया, व्हिच वी वर नॉट सपोज्ड टू. एनी फीडबैक फॉर टुडे? कोई चीज जो हम कल और अच्छा कर सकते हैं? आज तो टेक्निकल प्रॉब्लम में टाइम चला गया काफी. We will have class on Saturday and Sunday. That will be, I think, offline class. I won't be taking that class. I will only take online classes. Tomorrow I have a class with you guys that I know, और हम यही चीज second unit करेंगे. Any feedback you guys want to give? Actually, I would love if any feedback is there, because इससे ही improvement होगा class में. Enable mic. I don't have control over it. मेरे टीचिंग में या किसी चीज में मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, वो मुझे बताओ. इनेबल वाई माइक वी कैन आस्क सर, आनंद, कल किसी हम जो भी टेक्निकल पर्सन अवेलेबल होंगे हम उनसे पूछ सकते हैं कि यू ऑल गाइस, बिकॉज आई ऑल्सो लाइक दैट. माइक इनेबल होता है तो इट बिकम्स द क्लास बिकम्स मोर इंटरेक्टिव. बट अगेन उनकी भी कुछ रीजन हो सकते हैं, बिकॉज बच्चे ध्यान नहीं रखते, वो कभी अपने आप को अनम्यूट कर लेते हैं, पीछे से डिस्टर्बेंस आती रहती है, दैट बिकम्स डिफिकल्ट. आई डोंट हैव एनी ग्रुप बच्चा. Okay, anything else you want to, guys, you want to ask? Any feedback, or should we say our goodbyes? Sometimes my voice becomes unclear. Okay, 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 that we can work on. कुछ भी ऐसे होता है कि आप लोगों को लगता है ना कि कभी बीच में कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है, तो यू गाइस कैन आस्क मी टू रिपीट द लास्ट 1 मिनट और 2 मिनट्स. बहुत फ्रीक्वेंटली होता है क्या अनक्लियर जो होती है? बाकी लोग भी बताओ प्लीज, दिव्या के अलावा. अच्छा, ओके. देन आई थिंक कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है, मे बी फ्रॉम योर साइड और माइन. Okay, sometimes voice is not clear. Okay, then maybe I'll join tomorrow from another uh, earphone. Maybe I'll use or something like that. I'll try my best. Okay. Okay, Rabizul, I don't think this is an adequate question to ask your teacher, but okay, I'm going to ignore this question. Uh, all right, so I think we are done with the class. Okay, guys, I'll meet you tomorrow.
and we'll be starting the second period. All right. Okay. Bye bye. Good night, guys. Take care.